Dear students, today we will discuss very important topic of polysaccharides. Polysaccharides means several units of saccharides. Polysaccharides are of two types, homopolysaccharides, heteropolysaccharides. हम डिस्कस करें बच्चों आज homopolysaccharides. In homopolysaccharides, all saccharide units are identical, similar, as in case of starch. Today we will discuss बच्चों homopolysaccharide, that is starch. प्यारे बच्चों, जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उन सब की पीडीएफ फाइल हमने वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है। सभी बच्चे डाउनलोड कर लें, स्टडी कर लें। क्या डिस्कस करें बच्चों? हम डिस्कस कर रहे हैं टुडे वी विल डिस्कस स्टार्च, दैट इज ए फूड स्टोरेज होमोपोलीसैकेराइड विच इज polyglucan, as it is made up of several units of glucose. All units are identical, all units are glucose residues, so it is polyglucan or homopolysaccharide. Human beings कहाँ से बच्चों obtain करेंगे starch? हम we obtain starch either from cereals, wheat, rice, maize, legumes like beans, gram, tubers like potato, from fruits like bananas. This starch, it is an end product of, dear students note करें बच्चों, in photosynthetic plants as we know, starch is visible end product of photosynthesis. In plants, starch gets stored either in chloroplast or in special type of leucoplast, and these leucoplasts are amyloplast. In plant cells, the starch gets stored in the form of microscopic units, the granules, and these are named starch grains. The starch grains, ये देख रहे हैं बच्चों, different type of starch grains यहाँ बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या काम ने? In plants, photosynthetic plants, the end product of photosynthesis, that is starch, and it gets stored in the form of microscopic granules. These are starch grains. The starch grains में भी देख रहे हैं बच्चों, either these are singly or they may arranged in groups. जो single units होंगे बच्चों are simple starch grains. ये देख रहे हैं बच्चों इन ग्रुप्स, दीज आर कंपाउंड स्टार्च ग्रेन्स. ये देख रहे हैं बच्चों इन ए स्टार्च ग्रेन्स डिफरेंट लेयर्स आर प्रेजेंट. दीज लेयर्स आर नेम्ड शेल्स. दीज लेयर्स क्या काम है उनको? शेल्स का. एंड दीज लेयर्स मे बी अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक रिंग्स और बच्चों इसेंट्रिक फैशन. कहाँ देख रहे हैं? ये लेयर की बात करें तो बच्चों दीज लेयर्स, ये देख रहे हैं हम, दीज लेयर्स आर जनरली अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट एंड इट इज हाइलम. दिस हाइलम इज ए प्रोटीनेशियस सब्सटेंस. हमने कहा स्टार्च दैट इज ए पॉलीसैकेराइड एंड दिस स्टार्च गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ microscopic granules. These are starch grain, and in a starch grain several layers are present. These layers are named shells. ये layer देख रहे बच्चों, and these layers are attached at a common point, that is hilum, which is a proteinaceous substance. Starch grains प्यारे बच्चों simple unit है, single unit है, तब क्या कहें इनको? Simple starch grains. When these are arranged in groups, compound starch grains. उनकी शेप की बात करें तो ये देख रहे हैं बच्चों कंपटीशन, नीट वाले बच्चे, बेटा गेट नेट वाले बच्चे, इनका स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन सेट होता है तो ये देख रहे हैं. इन केस ऑफ पोटैटो कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई दे रही है बच्चों, कॉमन पॉइंट हाइलम देख रहे हैं हम, इट इज सिंपल टाइप. कंपाउंड भी होगा बच्चों इन केस ऑफ पोटैटो, कंपाउंड स्टार्च ग्रेन ऑफ पोटैटो. दिस इज स्टार्च ग्रेन ऑफ मेज, इट इज सिंपल टाइप. उसकी लेयर्स की बात करें तो बच्चों कंसेंट्रिक रिंग्स में देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं
the hilum is there and these rings are almost irregularly arranged. ये देख रहे बच्चों bean shaped देख रहे layers, the concentric rings are almost bean kidney shaped. कहाँ देख रहे बच्चों starch grain of pea, that is a simple type. In case of rice, more types, simple single units are there. और ये देख रहे बच्चों ग्रुप्स के अंदर these are polygonal starch grain in case of rice. ये बच्चों देख रहे हम starch grain. वहाँ देख रहे बच्चों उसकी जो रिंग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ओवल शेप्ड दिख रहे हैं, राउंडेड दिखाई दे रही है इन केस ऑफ व्हीट एंड इन केस ऑफ बनाना. द स्टार्च ग्रेन सिंपल टाइप ऑलमोस्ट ट्यूबुलर और रोड शेप्ड. डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर फाइनल एग्जाम. हम डिस्कस करते हैं बच्चों स्टार्च, दैट इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज, हमने कहा इट इज ए होमोपोलीसैकेराइड बिकॉज इट्स ऑल यूनिट्स आर ग्लूकोज ग्लूकोज. ये देखेंगे बच्चों ये. एंड दिस स्टार्च मॉलिक्यूल हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन इज अमाइलोज एंड सेकंड इज अमाइलोपेक्टिन. स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं. वन इज अमाइलोज एंड दैट अमाइलोज कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20% and this amylopectin about 80% generally. It means in the ratio of 1:4. 20 amylose, 80% amylopectin. This amylose, it is a straight structure without any branching. It is unbranched but it produces helix. ये हेलिक्स देख रहे बच्चों, उसकी ईच टर्न उसकी क्वाइल को स्टडी कर दो. अमाइलोज एंड दिस अमाइलोज विच इज अनब्रांच्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, उसकी ईच टर्न ईच क्वाइल, नीट वाले बच्चे नोट करें, नीट वाले बच्चे, उसकी एक टर्न की बात करें तो दैट क्वाइल टर्न कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6 ग्लूकोज रेजिड्यूज. वेरी क्लियर. 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 glucose units in each coil of amylose helix. And this amylose, ये देख रहे बच्चों, it consists of about 200 to 2000 glucose residues. फाइनल एग्जाम में उसका स्ट्रक्चर आता है तो बच्चों हमने कहा स्टार्च दैट इज ए होमोपोलीसैकेराइड, इट इज ए पॉलीग्लूकन, ऑल यूनिट्स आर ग्लूकोज. तो बच्चों ग्लूकोज 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 यूनिट्स को इंटरलिंक किया हमने, पेप्टाइड बॉन्ड्स, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एस्टैब्लिश हुए. एंड हियर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड COC, द लिंकेज इज alpha 1,4 लिंकेज. क्या कहा बच्चों हमने? स्टार्च इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, 2 कंपोनेंट्स. One is amylose and this amylose occurs in the form of helix which is unbranched, and this helix उसकी each coil, each turn having about 6 glucose residues, and this amylose is made up of 200 to 2000 glucose residues. और उसकी लिंकेज देख रहे हैं बच्चों amylose की, that is alpha 1,4 linkage. In case of amylopectin, ये देख रहे हैं बच्चों उसका स्ट्रक्चर वेरी क्लियर. amylopectin, it is a branch structure. It constitutes about 80% of starch, and this amylopectin, it consists of about 2000 to 2 lakh glucose units. बच्चों हमने कहा इट इज ए ब्रांच स्ट्रक्चर. उसकी ब्रांचिंग को स्टडी करें तो वन नेक्स्ट ब्रांच उसकी, एंड दैट ब्रांचिंग अकर्स अबाउट 25 ग्लूकोज रेजिड्यूज. ये देख रहे हैं बच्चों अमाइलोपेक्टिन, उसमें ब्रांचिंग, एंड ब्रांचिंग अकर्स एट एन इंटरवल ऑफ अबाउट 25 ग्लूकोज रेजिड्यूज. इट मीन्स इन केस ऑफ अमाइलोपेक्टिन 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस आर देयर. वन इज alpha 1,4 लिंकेज, और जो ब्रांच की बात करते हो बच्चों साइड ब्रांच, देन लिंकेज इज alpha 1,6 लिंकेज. इन अमाइलोज
क्या कहा हमने, दैट इज अनब्रांच्ड, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर। बट दिस अमाइलोपेक्टिन इट इज हाईली ब्रांच्ड। ब्रांचिंग कहाँ देख रहे हैं बच्चों, एट एन इंटरवल ऑफ अबाउट 25 ग्लूकोज रेजिड्यूज, एंड दिस अमाइलोपेक्टिन हैविंग मोर देन 2000 to 2 lakh glucose units. But in case of amylose, about 200 to 2000 glucose units. It is unbranched. Only one type of link is alpha 1,4. But in case of amylopectin, alpha 1,4 and alpha 1,6 linkage. And another difference, very important for NEET students, AIMS की तैयारी करने वाले बच्चे देखें, amylose that gives blue black color. This amylose gives, हमने कहा आयोडीन के साथ बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, in that iodine solution we use आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, उसके साथ बच्चों ब्लू ब्लैक कलर, और अमाइलोपेक्टिन गिव्स रेड वॉयलेट कलर। प्यारे बच्चों, ये सब बच्चों हमने जितना भी नोट्स बनाए हैं वो सब पीडीएफ फाइल, वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है। सभी बच्चे अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें। ये सब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं हम, पोटैटो का स्टार्च ग्रेन, ये देख रहे हैं बच्चों मेज के अंदर, ये देख रहे हैं बच्चों स्टार्च ग्रेन ऑफ पी, एंड इन केस ऑफ राइस वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज इन केस ऑफ बनाना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों मोर पॉलीसैकेराइड्स। थैंक यू।